Hello बच्चों. Today, as we promised to solve the question based on the Kirchhoff rule, so we are going to solve some problem based on the Kirchhoff rule. तो एक एक करके हम देखते हैं और एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं. तो वी विल एबल टू नो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ द करंट फ्लो इनसाइड द सर्किट एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द किर्चॉफ रूल. ठीक है. तो एक सर्किट डायग्राम एक हम बनाते हैं और उस सर्किट डायग्राम में हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक प्लेस एंड कैसे उसमें हम क्या करेंगे, किर्चॉफ रूल को अप्लाई करते हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू मेक अ डायग्राम, डीसी सर्किट डायग्राम. इट इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चन. So one of my loving student Prem has asked me to solve some question based on the NCERT. So today this question is dedicated to Prem. बेटा प्रेम, this is for you. आप इसको देखिए, समझिए and NCERT का क्वेश्चन आपने बोला था सॉल्व करने के लिए. So this is what NCERT question. And we have to solve the problem by applying Kirchhoff rule. So a DC circuit is given and we have given some resistance, say 10 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 5 ohm, 5 ohm, and this is 10 ohm and the voltage is given 10 volt. 10 volt voltage दिया है. तो ये 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड ये 5 ओम लगा है. Now we have to find in the question, it is given that the number of resistances are connected as shown and the question asked we have to calculate the corresponding current to the corresponding each resistance we have to find here. ठीक है. Now प्रेम, एक चीज़ और हमें पता करना पड़ेगा कि whether the given wheat stone is balanced or not. That means if the ratio of P by Q, ratio P by Q come to R by S, that is P by Q is come to R by S, that means no current will flow through the circuit, and in such a condition we have to simply find out the equivalent resistance for the 10 ohm and 5 ohm and फिर equivalent resistance for the 5 ohm and 10 ohm. When तो common way to find out the equivalent resistance, by the combination of resistance we will try to find out the equivalent resistance. तो उसको simply हम क्या कर लेंगे, equivalent resistance के method से find out कर लेंगे और current को हम निकाल सकते हैं. तो first of all we have to check whether the given the bridge is balanced or not. That means it is following the principle P by Q R by S or not. So if we take the P by Q 10 by 5 is equal to R by S 5 by 10. So here we can say that it is not equivalent. That means amount of current, sub current is going to this resistance also. So here we have to apply the Kirchhoff rule for solving the case. And suppose that if P by Q comes to R by S, then we have to just apply the common rule for solving the equivalent resistance. That means हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका equivalent निकाल लेते हैं, इसको solve. तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, just solve the method to finding out the equivalent resistance, वैसे ही हम लोग करते हैं. Now अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि when we are sure that the given combination of DC circuit does not follow Wheatstone bridge, तो then we have to start to follow Kirchhoff rule. अब हम लोग क्या करेंगे, किर्चॉफ रूल से क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे एंड द मेन एम इज वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस. सारे रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रहे हैं उसको हमको निकालना है. अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि लेट स्टार्ट फ्रॉम द 10 वोल्ट पॉजिटिव सोर्स. द करंट बिगिंस टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज I एंड दिस इज पॉइंट A. हम एक पॉइंट बना लेते हैं A B
सी एंड डी। तो अब ए बी सी डी में क्या है, करंट फ्लो करना शुरू कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही दिस करंट रीच टू पॉइंट ए, इस पॉइंट पे पहुंचती है, इट डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू पार्ट, दैट इज वन करंट इज नाउ स्टार्ट टू फ्लो इन आर्म्स ए डी एंड अनदर करंट इज स्टार्ट टू फ्लो इन आर्म ए बी. Now suppose that we have taken the current I1 that is started to flowing from the node from the junction A to B. Now I1 करंट क्या है, A से B में जा रही है, दैट मीन I में से क्या हुआ, I1 करंट का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो नाउ नेट करंट दैट इज गोइंग टू दिस वन विल बी लेस दैन I माइनस I1. तो I करंट यहाँ से थी, यहाँ से I1 करंट इसमें चली गई, तो बची हुई करंट कितनी हुई, I माइनस I1. Now let us consider the current that is flowing through AB. यहाँ पे I1 करंट आ रही थी. Now I1 से कुछ करंट निकल जाती है, क्या, I2 यहाँ पे चली जाती है. Now the current is will be less some amount I1 minus I2. Now current I1 minus I2 is going through and I2 is coming through the 5 ohm resistance and here I minus I1 is also coming. तो यहाँ पे जब पहुँचेंगी तो इधर से क्या हो रही है, I2 करंट आ रही है, इधर से क्या हो रही है, I माइनस I1 करंट आ रही है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ द करंट I2 एंड I माइनस I1 विल टेक प्लेस. सो हेयर करंट कितनी हो जाएगी, I माइनस I1 तो थी ही, इसी में क्या हो जाएगा, I2 और ऐड हो जाएगा. अब इसको क्या करेंगे, व्हेन वी रीचेस टू पॉइंट C वी विल सी दैट द टोटल करंट दैट इज द करंट I माइनस I2 एंड द करंट I माइनस I1 प्लस I2 विल कंबाइंड. तो यहाँ पे टोटल करंट वही मिलेगी जितनी करंट यहाँ पे क्या हो रही थी, जा रही थी, क्योंकि I1 टू I1 टर्म विल बी कैंसिल आउट, I2 टू I2 विल बी कैंसिल आउट, ओनली I विल सेम हियर. तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ करंट दैट एंटर थ्रू द सर्किट विल एग्जैक्टली ऑब्टेन इन द रिवर्सिंग द करंट. तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, I करंट बन जाएगी, ठीक है. अभी इसमें क्या हो रहा है कि वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ रूल. अब किरचॉफ रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड वी विल चूज द 3 मेश. यहाँ पे 3 क्लोज मेश बनेंगे. एक तो बन गया आपका ये, दूसरा बन गया आपका ये, एंड तीसरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. तो जस्ट वी हैव टू मेड अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट I1 I2 एंड, ठीक है, तीसरे मेश के लिए. तो हम इसको क्या करेंगे, टोटली हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. एंड लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना अगर आपको आता है तो किरचॉफ रूल समझना बहुत ही आसान है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन A B D A में जाते हैं, फर्स्ट क्लोज में से लेते हैं, इन A B D A में जाते हैं. अभी A B D में A में जाइए, वी आर मूविंग लेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. तो पहला क्या है, I1 है, वी आर फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन अप करंट, ठीक है, डाउन करंट के उसमें चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं. तो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी टेकन निगेटिव और करंट विल बी टेकन निगेटिव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 I1, दिस इज द फर्स्ट केस. यहाँ पे गए, इसके बाद इधर आ रहे हैं, फिर वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट. तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू I2. नाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस वन, वी आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 I माइनस I1 एंड नो EMF इज कनेक्टेड थ्रू दिस मेश, तो इट विल बिकम इक्वल टू 0. ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू अनदर मेश दैट इज B C D A. तो हम क्या लिखेंगे, इन B C D A. अब हम लोग क्या करते हैं, B C D A में चलते हैं. नाउ व्हाट इज इन B C D A, फिर से हम क्या कर रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. तो फिर से पहले क्या हुआ, इसमें जब आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट हो रही है. तो हम क्या करेंगे, माइनस लेके चलेंगे. तो -5 और करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, I1 माइनस I2. फिर क्या हो रहा है, इधर से आइए, इस साइड आइए, तो क्या हो रहा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, +10
and the current is I minus I1 plus I2 and now we are again going again the direction of the current, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 5 रेजिस्टेंस हो गया और I2 अगेन नो EMF इज कनेक्टेड थ्रू दिस मेश विल बिकम इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गए हमारे। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मूव, लेट दिस इज पॉइंट E एंड F। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट मेश में चल रहे हैं, क्लोज मेश, F A B C E F। फिर से देखिए F A B C E F, F A B C E F। अब इसमें चल रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। EMF यहाँ पे है, कितना हो जाएगा, प्लस का 10। फिर करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें डाउन करंट है, दैट इज वी आर मूविंग अलोंग द करंट, तो माइनस 10। और इसमें करंट कितनी माना हमने, I माना है, तो माइनस का 10 I हो जाएगा। एंड फिर अब देखो यहाँ पे जा रहे हैं, इधर से गए ये इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट I1, तो माइनस का 10 I1 हो गया। फिर हम जा रहे हैं इधर, तो माइनस का 5 I1 माइनस I2 हो गया। फिर इधर से हो करके ये आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो विल बिकम इक्वल टू 0। नो अभी यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, I पे जो करंट निकल रही है इसको भी हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, I इज द सम ऑफ I1 एंड दैट विल बिकम इक्वल टू I। तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, 3 इक्वेशन बन गए। ठीक है, सिंपली वी हैव टू अप्लाई द कॉमन अलजेब्रा रूल फॉर सॉल्विंग आउट द लीनियर इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन बनाना तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको सिखाना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द 3 इक्वेशन। इसको दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल गेट I1 I2। ठीक है, यही तो निकालना था, I1 I2। तो हम क्या करेंगे, तीनों को निकाल लेंगे, क्या होगा, तीनों को मिला के सॉल्व कर लेंगे। एंड हमसे पूछा क्या गया है, वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द करंट करस्पॉन्डिंग टू ईच रेजिस्टेंस। आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ I1 I2 इट विल बी क्वाइट इजी टू फाइंड what is I minus I1, what is I1, what is I minus I2, what is I2 and what is I. So just we have to place the value of each current corresponding to each branch and that will be quite easy for finding out the amount of current that is flowing in the circuit। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि first of all we have to check in such a question that whether the given circuit is based on the Wheatstone bridge or not. For checking the Wheatstone bridge we have to just apply the concept of P by Q R by S. If it comes equal, the ratio of arm P by Q is coming just equal to same। अभी सेम होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान चलिए कि यहाँ भी 5 ओम होता, यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है, तो जस्ट वी हैव टू, यहाँ भी 5 ओम है, तो जस्ट वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ P बाई Q, तो 5/5 इज इक्वल टू R बाई S इज इक्वल टू 5/5। अब ये क्या हो गए, सेम आ गए, तो दैट मीन नो करंट विल फ्लो थ्रू अक्रॉस B और D में क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। दैट विल बी द केस ऑफ बैलेंस Wheatstone एंड इन सच अ केस वी जस्ट हैव टू सॉल्व। अब इसमें दोनों में सेम करंट जा रही है, तो दिस विल बी, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट गई नहीं, यहाँ से जो करंट गई वही करंट यहाँ पे गई, करंट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो इसमें दोनों में सेम करंट जा रही है, इसमें दोनों में सेम करंट जा रही है, तो इसमें अगर सेम करंट जा रही है तो विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, 5 5 10, सीधे सीधे R इज इक्वल टू क्या, ये R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 5 बराबर 10। फॉर द सेकेंड केस इसमें भी क्या हो जाएगा, R डबल डैश बराबर 5 + 5 बराबर 10। नाउ व्हाट हैपन, this R dash and this R dash will be parallel to each other। Why? Because two different current going through it। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1। तो हमारा क्या हो जाएगा,
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 2/5, अभी 10 था तो 1/10 प्लस 1/10 2/10 1/5, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 5 आएगा। इन केस अगर ये भी कनेक्ट है तो फिर क्या हो जाएगा, इसे 5 आ गया, इसको हम फिर से जोड़ लेंगे 5 10 15 ओम हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और करंट अगर निकालना है, अगर मान लीजिए आर कितना आ गया 15 ओम आ गया, वोल्टेज लगाया है 10 वोल्ट लगाया है, तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, आई बराबर क्या हो जाएगा V/R 10/15, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी करस्पॉन्डिंग करंट हो जाएगी। अब अगर हमको I पता चल गया तो नाउ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो I बराबर क्या होता है I1 बराबर I2 होता है। तो व्हाट इज करंट दैट इज कमिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो 10/15 यानी 10/30 एक में जाती और 10/30 एक में जाती। दैट विल बी द ईजी वे टू फाइंडिंग आउट इन द केस व्हेन द व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्म में P/Q R/S के क्या हो रहा है बराबर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए, हालांकि एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं हम लोग, तो और मज़ा आ जाएगा। अब एक सीधा सीधा काम है क्या, लीनियर इक्वेशन जो भी मिल रहा है उसको सॉल्व करना, बाकी कुछ क्वेश्चंस में है नहीं, किरचॉफ रूल में कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक 4 ओम और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये 4 ओम हो गया और ये 6 ओम का हो गया, और इसके साथ में एक हम एमीटर लगा देते हैं, एक एमीटर लगा दिया, और यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। दिस इज एडजस्टमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच, करंट निकालना है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें भी क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ रूल, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। एंड इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया, व्हाट विल हैपन वी जस्ट एक्सचेंज द वोल्टेज टू एमीटर, इसको एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो पहले चलिए फाइंड आउट करते हैं क्लोज मेश के लिए। नो लेट करंट आई बिगिन टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, ये आई ही जा रही थी, यहाँ पे पहुँची तो 2 पार्ट में टूट गई, एक I1 में चली गई, एक I2 में चली गई। तो पहला इक्वेशन तो रेडी हो गया, I बराबर I1 प्लस I2, ये पहला जंक्शन रूल लगा दिया हमने। नाउ सेकेंडरी फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से I1 जो करंट आ रही है, ये I1 आ रही है, यहाँ पे मिल करके क्या होता है I बराबर I1 प्लस I2 हो जाता है। तो पहला हमारा मेश बन गया ये, और ये क्या हो गया दूसरा बन गया। जस्ट वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है, तो हम पहला क्या करते हैं इसमें लेके चलते हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्न, तो 5 हो जाएगा। फिर क्या हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो -4I2 फिर बराबर 0, तो -4I2 बराबर 5। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 माइनस I2 मिल गई, करंट डायरेक्ट मिल गई आपको। और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इसमें चलना है जब तो इसमें चलना है तो क्या हो जा रहा है, करंट यहाँ पे जा रही है, तो -6I1, ठीक है, एंड दिस वन, इसको पूरा क्लोज में से लेना है आपको। एंड ये कितना है 4 ओम है, तो प्लस का 4I2 बराबर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज नो EMF सोर्स इज कनेक्टेड हियर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 4I2 बराबर प्लस का 6I1। 4I2 बराबर क्या है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 6I1। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4I1। नाउ वी हैव टू इक्वेशन I2 दोनों को इक्वेट कर लें, तो 6/4I1 इज इक्वल टू -5/4, और इसको काट देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। प्लेस द वैल्यू ऑफ I1 इन वॉट एवर यू नीड, अगर यहाँ रखना हो तो यहाँ रख दीजिए। I1 I2 हो गया। नाउ इसमें रखेंगे तो विल गेट I,
तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। नाउ व्हाट एक्चुअली इन द क्वेश्चन इट हैज़ आस्क्ड दैट आफ्टर रिप्लेसिंग द बैटरी एंड एमीटर, तो जस्ट रिप्लेस द बैटरी टू द एमीटर, बैटरी को एमीटर से चेंज कर दीजिए, यहाँ पे एमीटर लगा दीजिए, एमीटर लगा दीजिए और यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए। जब बैटरी लगा देंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। बस कुछ नहीं करना है, बस बैटरी लगा के करंट को फ्लो करके डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करा दीजिए एंड फिर से वही किरचॉफ रूल लगा दीजिए, फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, थोड़ा तबीयत सही नहीं है और आप लोग इसमें जो है ये चैप्टर टोटल ख़त्म हो गया है। इसमें अभी एक टॉपिक और रह जा रहा है, क्या, पोटेंशियोमीटर। नाउ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर द टॉपिक पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा आप देख लीजिए कि मीटर ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज टोटली बेस्ड अपॉन द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के केस में हमने आपको बताया था कि just we have to place the jockey in the given length of the wire in such a way that galvanometer show no deflection. So the common thing is that the potential of point B and D will remain same. तो same हो जाएगा। तो in such a case we have to place the value of P and Q and that will be equal to R and S. तो हमको सिर्फ क्या निकालना होता है, S निकालना होता है। तो जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीटर ब्रिज गिवन और उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। फिर मैंने आपको बार बार बोला है कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, रिलेटेड टू द वॉट एवर टॉपिक दैट आई हैड टॉट यू, तो आप मेरे पास क्यों नहीं पूछते हो, आप पूछा करो मेरे से। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अभी नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात ही नहीं है भाई। अगर पढ़ रहे हो तो जैसे प्रेम ने पूछा, प्रेम को मैंने बताया, वैसे आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर इज़ गिवन 7080153365 एंड पूछेंगे तभी आपको अच्छा भी लगेगा। और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक बताइए कि आकाश सर पढ़ा रहे हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करा रहे हैं, घर बैठे आपको सुविधा मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। थैंक यू सो मच।